اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف بغیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سب سے پہلے اور اپنی جانب سے اور یہ حی علی العزا جو نیٹ ورک ہے اس کے ایڈمن اور ان کے جتنے دوست ہیں ہمارے ان کی طرف سے سرکار شہزاد امن کے ظہور پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ میرا مالک آپ تمام عزاداروں کو حلالی موالیوں کو سرکار مجتبیٰ کے صدقہ میں ہر مشکلات سے محفوظ فرمائے اور میرا مالک آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، کیونکہ یہ لائیو سسٹم ہے، جہاں جہاں پر بھی ہمیں عزادار دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی اپنی دعائیں بھی دل میں رکھیں، چونکہ ذکر آل محمد جہاں پہ بھی کیا جائے وہ مقبولیت کا وسیلہ بنتا ہے۔ قرآن مجید کی 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے اور بڑی شہرہ آفاق اور مشہور آیات ہیں جو میرے خیال میں بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ سورۃ رحمان کی وہ آیتیں اور یہ قرآن میں ایسی آیات ہیں کہ جس میں اس خالق لم یزل نے بڑے تکبرانہ انداز میں، بڑے گھمنڈ بھرے انداز میں مخلوق سے گفتگو کی ہے، اور یہ بھی سارے زمانے کو خبر ہونی چاہیے کہ گھمنڈ، فخر، تکبر سجدہ ہی اسی ذات کو ہے جو ذات لم یزل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسجد قباء کے محراب میں خود میرے سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ میرا مالک تو نے اپنی ہر صفت کا مظہر مجھ علی کو بنایا ہے، لیکن یہ تکبر والی جو صفت ہے یہ تو نے مجھے بھی نہیں دی، خود کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز ہے کہ یا علی تکبر، فخر، گھمنڈ مجھے ہی اچھا لگتا ہے، چونکہ میں ہی تو ہوں جس سے علی سجدہ کرتا ہے، اور میں ہی تو ہوں جس نے علی کو ظاہر کیا ہے۔ اور اگر اس کی طرف بھی چلے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑے اس میں راز ہیں، بڑے بڑے اسرار آل محمد علیہ السلام اس میں محفوظ ہیں۔ تکبرانہ انداز میں اس خالق لم یزل نے پوری مخلوق سے یہ گفتگو کی ہے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں کتنا بڑا ازلی اور ابدی کاریگر ہوں؟ پروردگار کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ تو اپنے بنائے ہوئے پہ بھی نازاں ہو رہا ہے؟ اب قرآن ظاہر اشارہ کرتا ہے، خالق لم یزل نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ میں وہ ازلی اور ابدی کاریگر ہوں، میں ایسا کاریگر ہوں مرج البحرین یلتقیان، جس نے 2 موج والے سمندروں کو آپس میں ملایا، جس نے 2 طغیانی والے سمندروں کو آپس میں ملایا ہے۔ اور یہاں بھی بحرین کا لفظ ہے، یعنی دونوں سمندر ایک جیسے ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کا صیغہ عربی گرامر میں ہمیشہ وہیں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر برابری کا تعلق ہو۔ جس طرح حسنین، یہ دونوں برابر ہیں، اور اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ سرکار کریم کربلا کا نام بھی حسن ہے، اسی لیے حسنین کہا جاتا ہے کہ 2 حسن،
یہ تو مدینے والوں نے کہا تھا کہ مولا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم بڑے شہزادے سے گفتگو کر رہے ہیں چھوٹے شہزادے سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو سرکار نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرکار حسین علیہ السلام کا نام رکھا حسین۔ یہ حسن کا اسم مصغر ہے، حسین کا معنی یہی ہے چھوٹا حسن۔ اب یہاں پر بھی میں جملہ ابتدا میں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اور کاش کہ یہ لاکھوں کا مجمع ہوتا اور کتنی اس پر دعا ہو جاتی، لیکن اب جہاں پہ بھی سن رہے ہیں میرے حق میں دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جناب سید ابو صالح رضوی صاحب ہمارے محسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب پتہ نہیں کتنا بڑا شہنشاہ ہے میرا شہزادہ امن سرکار کہ جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بڑا حسین شاہ اور سردار ہونا چاہیے۔ جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نام بنام ان کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں میں نے دو برابر کے موجوں والے طغیانی والے سمندروں کو آپس میں ملایا ہے۔ پروردگار دو سمندروں کو ملا دینا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو خالق لم یزل ہے، تو کن کا مالک ہے، تو کن کا خالق ہے، تیرے قبضے میں اختیار میں پوری کائنات، کیا پتہ نہیں کیا کیا تیرے قبضے میں ہے، تیری یہ کن میں کتنی کروڑ ایسی کائناتیں چھپی ہوئی ہیں جس کا احاطہ بھی دنیا نہیں کر سکتی، نہ علم کر سکتا ہے نہ علماء کر سکتے ہیں۔ تیرے لیے دو سمندروں کو ملا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندر مل بھی گئے، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں کے درمیان میں پردہ بھی رہا۔ قبلہ تشریف فرمائے میرے سامنے مولا، ان کا سایہ قائم رکھے، جو سن رہے ہیں، رضا ہے، زین رضا ہے، مامو جی ہیں، ساجد ہے، جہاں جہاں پہ بھی آپ ہمیں سندھ میں، پاکستان سے باہر جو بھی سن رہے ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دونوں سمندر مل بھی گئے اور درمیان میں پردہ بھی رہا۔ پروردگار پردہ بھی رہا، مل بھی گئے، فخر کس بات کا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فخر اس بات کا ہے، یخرجہما منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا اور پھر موتی بھی ظاہر سیدھا سادہ قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے کہ وہ دو سمندر مل بھی گئے، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اب اگر یہاں پر نعمت پہ بات کریں تو پھر ایک علیحدہ عشرہ مجلس خمسہ چاہیے، یعنی دو سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا اور موتی بھی برآمد ہوئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مومنین کے لیے ہم بھی ظاہر ہیں، آپ کے لیے اداس ہیں اور آپ ذکر آل محمد کے لیے بےتاب ہیں، جہاں پہ بھی آپ سن رہے ہیں، تو ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور آج بھی حاضر ہوا ہوں۔ شیعہ تفسیر کا نام ہے مجمع البحرین، اور برادران اہل سنت کی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور۔ تفسیریں دو ہیں لیکن دونوں میں ایک ہی روایت ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہو کر جب انہی آیات کی تلاوت کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلؤ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو مسجد کے وسط میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ مل بحران، مل حجاب، مل لؤلؤ والمرجان، وہ دو سمندر جو آپس میں اللہ نے ملائے ہیں وہ دو کون ہیں، جو درمیان میں پردہ رہا ہے رکھا ہے وہ کون ہے، اور جو موتی ظاہر ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ تو مسکرا کر سرکار مصطفیٰ نے فرمایا سنو، ان علی جن والفاطمہ بحران عمیقان من العلم وعن الحجاب۔ فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو اللہ نے حجاب رکھا ہے وہ خود میں مصطفیٰ۔ سیدہ بھی ایک سمندر کا رتبہ رکھتی ہیں، توحید کا سمندر، اور امیر کائنات بھی توحید کا سمندر ہے، اور یہ کائنات میں وحد جوڑا ہے جو برابری پر ہے، دونوں بحرین ہیں، جیسا علی سمندر ہے ویسے ہی سیدہ سمندر ہے، جتنی طہارت علی کے سمندر میں ہے اتنی ہی طہارت سیدہ کے سمندر ہے۔ اور یہ بھی دنیا کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے امیر کائنات سے، کیونکہ اس وقت بھی تو ایسے جاہل لوگ موجود تھے کہ امیر کائنات سے کچھ انہوں نے ایسا سوال کیا، میں سوال نہیں دہرا سکتا لیکن امیر کائنات کا جواب میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور امیر کائنات سے سوال کیا کہ تو سرکار نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے علی کی زندگی اور جان ہے،
कि तुम मुझसे सैयदा के बारे में कैसा सवाल कर रहे हो, मैं जब भी हसन की माँ के चेहरे को गौर से देखता हूँ मुझे बतूल नहीं रसूल नजर वाह 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 कि मुझे अली का ये फरमाना कि मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आते हैं, तो ये उस हिजाब की बात है समंदरों के दरमियान में। अब यहाँ पर बंदा वैसे गुमराही के गड्ढे में गिर जाए, बद एतकादी का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाए और जहन्नम के ईंधन बन जाए, तो उसकी अपनी मर्जी की बात है, वरना खुदा ने तो हिदायत का दरवाजा खोला हुआ है। और सरकार मुस्तफ़ा ने इस आयात की तफसीर में खोल के बात बयान कर दी है बात कि एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है, और दोनों के दरमियान में पर्दा रसूल हूँ। यानी जब भी ये दोनों मिलते हैं, जहां भी ये दोनों मिलते हैं, जिस सूरत में भी ये दोनों मिलते हैं, मैं मुस्तफ़ा हुक्म खुदा के मुताबिक किसी न किसी तरीके से इन दोनों के दरमियान में हिजाब है। अब अगर ये जमाना कहे कि ये 14 हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, हम चलते हैं वो भी चलते हैं, हम खाते हैं वो भी खाया करते थे, हम बोलते हैं वो भी ऐसे बोलते थे, हमारी शक्लों जैसी शक्लें थी, हमारी आंखों जैसी उनकी आंखें थी, तो ये अगर सोच तुम्हारी जमाने की हो सकती है तो खुदा का वास्ता जमाने की सोच को सामने रखकर खुद को बद-इत्कादी का शिकार ना करना। अगर जमाना ये कहे कि ये हम जैसे हैं तो जमाने को एक काम भी करना पड़ेगा। कौन सा? जो कुरान कह रहा है कि अपने सुसर को दरमियान में बिठाओ फिर बाप बन एक समंदर सैयदा है और दूसरे समंदर का नाम अली है। ये अल्लाह कह रहा है कि जो दो समंदरों को मैंने आपस में मिलाया, वाह वाह, यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। अल्लाह कहते फिर इन दोनों समंदरों से मैंने दो मोती जाहिर किए हैं, एक लोलो है एक मरजान है। और ये भी सरकार मुस्तफ़ा की हदीस है और सरकार की तफसीर में शामिल है। फरमाया अल-लोलो हुवल हसन, जो लोलो है वो मेरा बेटा हसन है, जो मरजान है वो मेरा बेटा हुसैन है। और यहाँ पर एक मसला हल हो जाना चाहिए। आज यही वजह है जो सवाल किया जाता है कि इमामत नस्ल हुसैन से शुरू हुई है, नस्ल हसन में अल्लाह ने क्यों नहीं रखी है। इसमें काफी तौजीहात उलमा ने लिखी हैं, लेकिन मैं जाते जाते एक आपसे बयान करता हूँ। लोलो मोती होता है और मोती एक होता है, मरजान की शाखें होती हैं। कभी आप मरजान जो है ये एक पौधे का फल है, जो हम हाथ में मरजान का पत्थर पहनते हैं, ये फल है एक पौधे का जो समंदर में होता है, तो उसकी शाखें होती हैं। इसलिए इमामत हसन से नहीं हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से जारी है। शाखें वो मरजान है, हुसैन अलैहिस्सलाम लोलो है, वो एक है और हमेशा ही एक है। और दूसरी बात यह है कि इमामत अली की विरासत नहीं। अगर इमामत अली की विरासत होती तो अली के सारे बेटे इमाम होते। इमामत सैयदा की विरासत है, सैयदा के दो बेटे हैं और दोनों इमाम हैं। और यही वजह है कि है अब्बास जनाब सैयदा के बेटे हैं, जनाब अब्बास, लेकिन जनाब सैयदा ने जनाब अब्बास को हासिल करने के लिए, ज़हूर पज़ीर होने के लिए जनाब उम्मुल बनीन का हिजाब इस्तेमाल किया, क्योंकि सैयदा को पता था कि अब मैं अब्बास के लिए अपना हिजाब इस्तेमाल करूं तो फिर अब्बास भी इमाम होगा। अल्लाह को 13वां इमाम नहीं है मंजूर, इसलिए सारी सिफात हजरत अब्बास में इमामत वाली हैं, इमाम नहीं है। अब हमारे अकीदे पर लोग बात करते हैं, यार जो लाइव सुन रहे हैं गौर से तो सुने, बाद में तो इस वीडियो पर पता नहीं कितने कमेंट्स होंगे और अभी भी आ रहे होंगे, कोई हमें गालियां दे रहा होगा, कोई हमें मुशरिक कह रहा होगा, कोई हमें काफिर कह रहा होगा, उसकी अपनी मर्जी की बात है। जब हम लोग हजरत अब्बास जैसे मासूम हस्ती को आज तक इमाम नहीं कह सके, पागल है हम अली को अल्लाह कहे। तो ये दो समंदर मिले हैं और उन दोनों के दरमियान में जो पर्दा है वो सरकार मुस्तफ़ा ने, और जो मोती निकले हैं वो हसनैन शरीफैन है। अल्लाह जाने कितनी इज्जत और मंजिलत का मालिक है हसन। कि आप हदीस किसा को भी पढ़ें और जब हदीस किसा की बात आती है तो हदीस किसा है क्या? हदीस किसा हकीकत में इसकी बड़ी तौजीह उलमा ने लिखी है। हदीस किसा में सबसे पहले मुस्तफ़ा के बाद सरकार हसन तशरीफ लाए हैं और हसन अलैहिस्सलाम ने आकर अपनी जनाब सैयदा से कहा है कि या उम्मा हुन्नी शुम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन कान्ना रायहातु जद्दी रसूलिल्लाह है।
अम्मा जान मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। वाह वाह बीबी ने कहा वो आपके नाना चादर के नीचे तशरीफ फरमाए। वाह वाह हसन मौला चादर के बहर गया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह हो या जद्दा हो, मेरे नाना अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत है अनदखुला माँ का तहत हाज़िल के साथ, कि मैं भी आपके साथ चादर के नीचे आ जाऊं। सरकार ने फरमाया कि तू मेरे हौज का साहिब है, अलैका सलामो या वलदी व या साहिबा हौजी, ऐ मेरे हौज यानी कौसर का मालिक, वाह 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 तू भी चादर के नीचे आ जा। अब सरकार हसन मौला भी चादर के नीचे गए, यानी अहले बैत जब तरतीब दे रहा था अल्लाह और रसूल, तो उसमें सबकत हसन की है, हुसैन बाद में, अली बाद में, सैयद फिर बाद में। अहले बैत की तरतीब को भी देखा जाए तो मुस्तकबा के बाद सरकार हसन तशरीफ लाए हैं, और फिर उसके बाद सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम है। फिर कहा कि या उम्मा इन्नी शुम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन कान्ना रायहातु जद्दी रसूलिल्लाह, अम्मा जान मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा वो आपके भाई और नाना मेरी चादर के नीचे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार करीम अमीर कायनात तशरीफ लाए, मेरे मुर्शिद अमीरुल मोमिनीन, तो उन्होंने कहा कि या फातिमा तो इन्नी शुम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन कान्ना रायहातु अखी व इब्नु अम्मी रसूलिल्लाह, मैं तुझसे अपने भाई और अपने चचाजाद भाई की खुशबू रसूलुल्लाह की महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे आज तक यहाँ भी समझ नहीं आई कि हसन ने भी यही कहा कि अम्मा जान मैं आपसे खुशबू महसूस कर रहा हूँ, हुसैन ने भी यही कहा कि अम्मा जान मैं आपसे खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अमीर कायनात ने भी यही कहा कि सैयदा मैं आपसे खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ये किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने घर से महसूस कर रहा हूँ, घर में ये किसी ने कहा कि इस घर से सैयदा से कहा था कि इस घर से हमारे सरदार की खुशबू आ रही है, नहीं फरमाया आपसे आ रही है, आपसे आ रही है, आपसे आ रही है। और बीबी ने सबको बताया कि वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे। कहाँ अंधे हो के तुम टकरे मारोगे, पता नहीं किस शान पे खड़ी है हसन की पाक माँ, जिसने कम अज कम 3 इमामतों को मुस्तफा का रास्ता बताया। वाह 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 और पता नहीं किस जलाल का मालिक था सरकार मुज्तबा, कि जो रजील तरीन अली का दुश्मन अली की जुल्फकार से भी ना डरा, वो हसन की खामोशी से डरा। कोई एक खत दिखाओ कि शाम के हाकिम ने अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा होगा या अली आज सुलह पर बात करनी है, जबकि साहिब जुल्फकार हैं, अली हैं सारे साहिब जुल्फकार, जो अली के बाद हसन मौला के बाद जुल्फकार है ये, लेकिन वो हसन की खामोशी से खौफजदा हुआ, मेरे मौला के कलम से डर गया। और ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि जब यजीद का बाप मदीने एक दफा आया था यजीद की बैयत लेने, सारा दिन बैयत लेता रहा यजीद की, हीरा चांदी सोने जवाहरात पैसे दौलत लोगों को देता रहा, लोग लेकर यजीद की बैयत करते रहे और चाहते रहे। असर की नमाज का वक्त हुआ, यहाँ पर मैं खसूसी तौर पर सादात उज़ाम की तवज्जो चाहूंगा, जो जहाँ पर सुन रहे हैं या मेरे सामने भी तशरीफ फरमाए। असर के वक्त जनाब हसन मौला मस्जिद नबवी में तशरीफ ले, सरकार को क्या कि ये बैयत ले रहा है, तकसीम कर रहा है। सरकार ने अपने मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज शुरू की। यजीद के बाप ने अपने नौकर को बुलाकर कहते, ये जो मुसल्ले पर खड़ा है ना, ये आम बंदा नहीं। उसने कहा जी कौन है? फरमाया ये रसूल का बेटा। दुश्मन भी तस्लीम कर रहे हैं कि ये रसूल, क्योंकि रसूल जैसा लग रहा है तो फिर रसूल का बेटा। और कितना करीम है अली भी कि हसनैन अली के बेटे हैं, लेकिन सारी जिंदगी लोगों ने यही कहा यब्न रसूल अल्लाह, यब्न रसूल अल्लाह। फरमाए ऐ रसूल के बेटे, तो उसने भी यही कहा कि ये रसूल का बेटा खड़ा है। उसने कहा जितनी तूने सारा दिन दौलत तकसीम की है ना, उससे डबल 2 गुना करके यहाँ पर रख, रसूल के बेटे को पेश करनी है। सरकार नमाज से फारिग हुए, सरकार बड़ी बेनियाजी से उस दौलत के ढेर के करीब से गुजरे, 3-4 कदम चले, पीछे से उसने आवाज दी अपने रसूल अल्लाह। सरकार ने पीछे मुड़कर यूं इशारे से ही कलाम किया, क्या कहना चाहता है, बोले नहीं। उसने कहा जितनी मैंने सारा दिन तकसीम की है ना धन दौलत, ये उससे डबल है, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। और आप किसी नौकर को बुलाएं और ये दौलत अपने घर ले जाएं, क्योंकि हमारे पास दौलत, अब यहाँ पर उसने फख्र किया कि हमारे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूँ, ये उसने कहा। सरकार ने फिर भी बेनियाजी से उस सोने चांदी के ढेर के करीब से गुजरे। जैसे मस्जिद के दरवाजे पर सरकार पहुंचे,
तो उसी का एक हबशी गुलाम था अमीर शाम का, उसने फौरन जल्दी से उठकर सरकार के नालैन को अपने कमीज के दामन के साथ अपने सीने के साथ साफ करके सरकार की बारगाह में पेश की। सरकार ने नालैन पहनती उसे कहा कि ये दौलत का ढेर देख रहा है? उसने कहा सरकार देख रहा हूँ। फरमाया उठाकर घर ले जा। जब दौलत हबशी गुलाम उठाने लगा तो वहीं से अमीर शाम चीखा कि सरकार इतना बड़ा दौलत का ढेर आप हबशी गुलाम को दे रहे, क्या जुमला कहा मेरे मौला ने। दिल करता है बंदा उड़ जाए और फिर वापस न लौटे। सरकार फरमाते हैं मैं इतनी दौलत हबशी गुलाम को इसलिए दे रहा हूं कि उसने दुश्मन के सामने मेरी नालैन को साफ करके मेरे सामने पेश किया है, और मैंने सारी दौलत उसे इसलिए दे दी है कि मैं फातिमा का बेटा हूं। और जहां तक ये लोग, आप एक वाकया तो आप सबको याद है ना कि सरकार मुस्तफा सजदे में मसरूफ थे और हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पर सवार हो गए। ये तो सबको याद है। और बच्चे बच्चे शिया कौम के बच्चे बच्चे को याद है। मौला वो जल्दी दिन ले आए, ये कोरोना वायरस ये सब कुछ मौला खत्म करे और हम इसी तरह जिक्र हुसैन फिर जारी सारी ज़ाकिरीन उलमाए कराम वाइज़ीन खुतबा अज़ादार मातमी फिर उसी तरह है हुसैन में मसरूफ हो जाए। मैं तो हर बंदे के लिए दुआ कर रहा हूँ जो जिक्र करता है, जो जिक्र करवाता है, जो सुनता है, जो सुनवाता है, सबके लिए दुआ गो कि मालिक सबकी इज्जतों में तौफीकात में और मुश्किलात हल फरमाए, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो ज़ाकिरीन है, जो वाइज़ीन है, जो मुबल्लिग विलायत अली अलैहिस्सलाम है, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए शर से। तो ये सबको याद है कि हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पर सवार हुए और सरकार ने सजदे से सर न उठाया। क्यों ना उठाया? जिब्राइल ने आकर कान में कहा था कि सरकार हुसैन पुश्त पर बैठी है, अब सर न उठाना। सारी जिंदगी यानी जब से मैं कहां से आया वहां रसूल को बताने के सर सजदे से न उठाना, हुसैन सवार है। क्योंकि यहाँ पर मैं सूरत सजदा की एक आयत पढ़ता हूँ और पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, एक टुकड़ा फिर तर्जमा, फिर टुकड़ा फिर तर्जमा, ताकि सजदा वाजिब हो जाएगा अगर हमने वो आयत मुकम्मल पढ़ी तो। अपने महबूब से अल्लाह कह रहे हैं बस जो हबीब सजदा कर, वक्त तरिब और मेरे करीब हो जा। यानी जब मुस्तफा सरकार सजदे की हालत में होते हैं तो अल्लाह के कुर्ब में जब सजदे में सर होता है सरदार का, कायनात का सुल्तान है सरकार मुस्तफा, अली जैसा सुल्तान जिसके सामने बिला तशबीह यूं खड़ा रहे, वो कितना बड़ा सुल्तान होगा। अल्लाह का कुरान कह रहे कि जब रसूल सजदे में होते हैं तो वो अल्लाह के कुर्ब में होते हैं। जब महबूब और मुहिब का कुर्ब हो, दरमियान में जिब्रील की, यानी आप देखें कि जब सरकार अवदना की मंजिल पर पहुंचे थे तो वहां पर कहां जिब्रील आया था? अल्लाह ने खुद सूरत वन-नज्म में कहा ओहा इला अब्दिही मा ओहा, हमने बंदे पे वही की जो की। ये आयत वो है जो जिब्राइल के बगैर नाजिल हुई कि वहां कुर्ब खुदा में थे मुस्तफा, वहां जिब्राइल की गुंजाइश नहीं, वो सिदरा पे फड़फड़ा रहे थे। तो जब रसूल सजदे में है तो फिर वहां जिब्राइल की गुंजाइश, खुदा का वास्ता न सुना करो न पढ़ा करो कि जिब्राइल कहां से आ गया है। तो फिर क्या हुआ जब हुसैन, पहले तो हुसैन के आने की तरतीब बड़ी अजीब है, यानी कि बहुत बड़े उलमा ने इस पर बड़ी बहसें की हैं, बड़ी तौजीह लिखी है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में हालत में पुश्त पर आकर सवार होकर बैठे, उस वक्त महबूब खुदा अल्लाह के कुर्ब में था। यानी इतनी ताकत रखता है अली का ये छोटा बेटा हुसैन कि जब महबूब और मुहिब कुर्ब में हूं तो सिर्फ हुसैन ही है जो दरमियान में। हुसैन आकर पुश्त पे सवार हुए, रसूल का सर सजदे में है। अल्लाह अकबर। तो रसूल सजदे में सर रख कर यही पढ़ रहे थे ना, सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। जाफर जतोई को दुनिया का कोई बंदा ये जुमला कहने से रोक ही नहीं सकता, और ना मैं किसी के कहने पे रुक सकता हूँ कि मुस्तफ़ा यही फरमा रहे थे सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। हुसैन पुश्त पर बैठा था, मोहम्मद कह रहे हैं सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, और अल्लाह रसूल से कह रहे हैं अब सर ना उठाना। सवार वो हो गया है, तेरी भी बका का ज़ामिन है, मेरी भी बका का ज़ामिन है। तो ये तो वाकया सबको याद है कि सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हुए थे। बराबरी तब बनती है कि हसन भी सवार हो, बनते तब है, वो बड़े हैं जिसके सामने हुसैन छोटा नजर है उसको हसन कहते हैं। हसन सरकार हसन मौला भी नाने की पुश्त पर सवार हुए थे, लेकिन सरकार ने ना सजदे को तूल दिया, ना रकू को तूल दिया,
न कयाम को तूल दिया, वाह वाह बल्कि यूं सर सजदे में था, हसन सवार हो गए। वाह वाह सरकार ने क्या किया? और यहाँ पर भी कहा जाता है कि सरकार ने बाएं हाथ से हसन को पकड़ा। भाई समझो, अकल की अंधो न बना करो। साहिबान अज़ा और विला से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, साहिबान अकीदा से गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि रसूल ने बाएं हाथ से हसन को रोका। रसूल का दाया बाया नहीं होता, रसूल के दोनों दाएं। बाएं हाथ तेरा मेरा होता है, वाह वाह जिससे हमने अपनी निजास्तें दूर करनी होती वाह दोनों हाथ दाएं हैं। जहाँ पर ये कहना चाहिए कि रसूल ने एक हाथ से हसन को यूं टेक, एक हाथ से ही सजदा किया। वाह वाह और यहाँ पर फिर उलझना है तो रसूल से उलझो कि एक हाथ से जैसे सजदा होता है वो तेरा नहीं होता, वो मुस्तफा है। वाह वाह क्योंकि दूसरा हाथ भी जिसको रखा हुआ है वो भी पता नहीं किस मंजिल का मालिक है। वाह वाह एक हाथ से उठे और यूं हसन को पकड़ा हुआ है। फिर दूसरा सजदा भी एक हाथ से किया, फिर कयाम के लिए उठे एक हाथ से, फिर एक हाथ से ही कयाम किया, यूं हसन को थामा, एक हाथ से कनूत पड़ी, एक हाथ से दूसरा रकू किया। जाफर सुनता, एक हाथ से दूसरा सजदा किया, फिर एक हाथ से दूसरा सजदा किया, एक ही हाथ से नमाज को इख्तिताम तक किया। तो फिर यहाँ जुमला आपको खुद खुश होकर सुन लेना चाहिए कि जो मोहम्मद के एक सजदे में शामिल हो उसे हुसैन कहते हैं। मुस्तफा के एक सजदे में शामिल हो उसे हसन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। जो मुस्तफा की पूरी नमाज में शामिल हो उसे हसन कहते हैं। और ये तो यानी एक वक्त ऐसा आया था कि अमीर कायनात से एक बंदे ने कहा था कि अपने बेटे हसन को समझाओ, और सरकार अमीर कायनात जैसे अली जैसे सुल्तान ने उस बंदे को देखकर कहा था कि मैं समझाऊं हसन को, मैं वाह 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 तो मैं हसन को क्या समझ, वैसे तू बता के क्या समझो। उसने कहा भरे दरबार में आकर हमें आकर ललकार कर कहता है कि उतर मेरे बाबा के मिंबर से। इतना कलेजा तो पहले लाओ जो हसन सरकार के पास है। और फिर अली के लिए भी नमाज तवील हुई है सरकार मुस्तफा की। वाह वाह कि रकू नमाज ये नहीं पता कि वो जोहर की थी, मगरिब की थी, शाह की थी, फजर की थी। ये किताब में नहीं लिखा हुआ, मुझे भी क्या खबर है वो किस जमात नमाज की बात हो रही है। थी नमाज और करवा जमात रहे थे। रकू तवील हो गया सरकार मुस्तफा का। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कोई लंबी सूरत नाजिल हो रही है जिससे सरकार का रकू तवील हो गया। लेकिन वाकया उनकी सोच के उलट हुआ। जब सरकार ने नमाज को इख्तिताम तक पहुंचाया, अल्लाह अकबर कहकर तस्बीह और दुआ से भी पहले सुभान अल्लाह, सरकार ने बिला तस्बीह पीछे मुड़कर एक ही लफ्ज का ऐन ऐन अली इब्न अबी तालिब, आखिरी सबसे आवाज आई लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, आगे तशरीफ ले आओ या अली। अली सामने है। मौला हुक्म फरमाए आज आप नमाज में देर से क्यों आए? सरकार अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपके मुअज्जिन ने अजान शुरू की, मैंने घर में आवाज दी उम्मे ऐमन फिजा बतूल हसन हुसैन कोई मुझे बाज़ाहिर पानी दे, मैं बाज़ाहिर वुजू करके आपके इक्तिदा में नमाज अदा करूं। मौला इत्तेफाक है किसी ने जवाब ही ना दिया, घर में था ही कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे पर या रसूलल्लाह दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3 बंदे खड़े थे। एक के हाथ में आफ्ताबा था जिसमें पानी था वुजू करने का, दूसरे के हाथ में तश्त था, तीसरे के हाथ में रुमाल था। तश्त वाले ने जमीन पे तश्त रखा। या रसूलल्लाह मैंने वुजू करना शुरू किया, पानी मैं हाथों पे डाला, चेहरे पे डाला, लेकिन नीचे तश्त में वो कतरे नहीं गए, तश्त खाली रहा। अल्लाह के नबी पहले तो ये बताएं कि वो कतरे किधर गए। सरकार कहते यार अली तू वुजू करने में मसरूफ था, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते तेरे गिर्द चक्कर में थे तवाफ में, और हर फरिश्ते कहता था ये कतरे मैंने लेने हैं। और या अली तुम्हें पता है जो आफ्ताबा पानी का लेकर आया था वो कौन था? इसराफील था।
जिसके हाथ में तश था वो मिकाईल था, जो रुमाल लेके खड़ा था वो दरदाइल था। या अली ये तीन फरिश्ते तेरी ड्यूटी में लगे हुए थे नौकरी में, इधर मैं रकू में चला गया। और ये तो मेरे ख्याल में मजहब शिया का बच्चा भी जानता है कि अगर हालत रकू में आप जमात में शामिल हो जाएं तो आपकी रकात शुमार की जाती है। या अली मैं रकू में चला गया और जिब्राइल ने आकर मेरे पांव पकड़ लिए और उसने मुझे कहना शुरू कर दिया, कैफ या रसूल अल्लाह, कैफ या रसूल अल्लाह, कैफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी रुकना अली को आने दो, अल्लाह के नबी रुकना अली को आने दो, अल्लाह के नबी रुकना अली को आने दो। भरी पड़ी है कुतुब आले मोहम्मद, पूछ लेना आप अपनी मर्जी के आलम शिया से कि 70 मरतबा जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी ठहरो अली को आने दो, अल्लाह के नबी ठहरो अली को आने दो। यार हद हो गई है, हम काफिर हैं, हम मुशरिक और हम गाली कहते हो। हमारा जुर्म है कि हम अली से मोहब्बत करते हैं। जिब्राइल मोहम्मद के रकू की हालत में 70 दफा अली का नाम ले तो रसूल की नमाज हो जाती है, मैं एक दफा लूं तो बातिल क्यों? हुसैन के लिए भी नमाज तवील हुई, वो भी नमाज रसूल में शामिल है। हसन मौला भी मुस्तफा की नमाज में शामिल है, अमीर कायनात भी मुस्तफा की नमाज में शामिल है, जनाब सैयदा भी मोहम्मद की नमाज में शामिल है, क्योंकि ये सारे मिन्नियत की मंजिल पर है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हसन मिन्नी व अना मिनहु, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हसन मुझसे है मैं हसन से हूँ। तो ये सारे मिन्नियत की मंजिल पर है। तो हसन वो सरदार है। जब उसने खत लिखा था शाम वाले ने कि आओ चंद बातें करनी है, और जिसको सुलह का नाम देकर लोगों ने ऐसे हमें परेशान किया, ये सुलह नहीं है, ये एक और मसले है, इस पर हम बहस ही नहीं कर सकते। फिर इंशाअल्लाह वो कायम मौला आएंगे तो वो खुद बताएंगे कि इसमें कितने मसाइल उलझे हुए और सुलझे हुए हैं। तो सरकार जब शाम जाने लगे तो सरकार अब्बास जैसे सुल्तान ने भी, यानी कि एक जंग जमल जब हुई थी तो अमीर कायनात ने जनाब मोहम्मद हनफिया से कहा था कि तुम तीर चलाओ। जब हजरत मोहम्मद हनफिया ने तीर चलाया तो वो लगा तो सही, मैं तो ये नहीं कहता कि वो निशाना खता हो गया, वो भी अली का सुल्तान बेटा है, लगा तो सही, लेकिन जैसे अली का दिल था वैसे न लगा। हनफिया से कहते अब तो हम पीछे हटो, और वाहिद जंग है जहां अमीर कायनात ने हसन मौला से कहा था कि हसन अब ये तीर तुम चलाओ। जब हसन ने चलाया तो ऐसा लगा कि बस हर चीज ही फतह में शामिल हो गई। और जनाब अमीर कायनात हसन का चेहरा चुमर मोहम्मद हनफिया ने कहा कि सरकार मेरा निशाना वैसा नहीं लगा जैसे आप चाहते थे, हसन का निशाना कैसे लगा? फरमाया तू अली का बेटा है, वो रसूल। जब मेरा हसन मौला शाम जाने लगे तो सरकार अब्बास जैसे सुल्तान ने हसन मौला के सामने हाथ बांध कर, सरकार वो दुश्मन का दरबार है, मैं साथ चलूं? फरमाया अब्बास घबराओ नहीं, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि तू हमारा बड़ा लाडला है, लेकिन मुझे हसन कहते। तो शाम में तो शोर था ना कि अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा शाम आ रहा है। जिस मिंबरों पर अली के लिए माज़अल्लाह क्या क्या कहा गया, उस शहर में अली का बेटा आ रहा है। और ये भी याद रखे पूरी दुनिया, जहां जहां पे भी मुझे सुन रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, याद रखे अल्लाह की सरजमीन के ऊपर वाहिद खित्ता शाम ऐसा है जहां अली की दुश्मनी की इंतहा हुई है। कि मिंबरों पर बैठकर मेरे मौला के बारे में बकवासें की गई हैं, जुम्मे के खुतबे में की गई हैं। और याद रखें कि वो मौजज़ा कि अली की बेटी ने उस शाम को ऐसे फतह किया है। मैं ये नहीं कह रहा ना ये कोई समझे कि मेरा कोई अकीदा है कि अब वहां पर नुसैरियों की हुकूमत है, जहां दुश्मनी की इंतहा थी, अब वहां पर हुकूमत कैसे हो रही है। उस शाम जैसे शहर में हसन मौला तशरीफ लेकर तो शोर पड़ा हुआ है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा तशरीफ ला रहा है। तो बड़े बड़े लोगों ने वहां पर सुना है। तो एक वहां पर आपके बच्चों को वाकई याद है, छोटे छोटे रिसालों में लिखा होता है कि छोटा एक मोची था वहां पर जूतियां बनाने वाला, उसको पता चला कि अली का बड़ा बेटा शाम में तशरीफ ला रहे हैं, तो वो फौरन अपने घर में गया। घर में जाकर उसने अपने औजार उठाने शुरू किए जिससे जूती बनती है। तो उसकी बीवी कहती है किधर जा रहा है? कहते आम बंदे की जूती नहीं सीने लगा, जूती सीने लगा हूं अली के बेटे की, और दरियाए फुरात के किनारे पे बैठकर सीऊंगा। दरिया के किनारे पर आब जारी से इन औजार को गुस्ल दूंगा, फिर एक एक टांका लगाऊंगा उस नालैन को। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है कि मैंने सरकार के पाँव को देखा ही नहीं है, अंदाजे पे बतानी है,
खुदा करे सरकार को पूरी आ जाए। तो उसकी बीवी ने कहा इतना अकीदा रखते हुए फिर परेशान क्यों है? तो अकीदा दिल में रख के सीता जा, सरकार जाने दो। एक टांका लगाता है, कभी कोई आयत पढ़ता है, फिर टांका लगाता है, कभी दुरूद पढ़ता है, फिर टांका लगाता है, कभी सलवात पढ़ता है, फिर टांका लगाता है, कभी आयत पढ़ता है। बंदे हमें काफिर काफिर ही कह ले तो फिर क्या हो जाएगा? पता नहीं किस शान का मालिक है बतूल का बड़ा बेटा जिसकी जूती पर तिलावत हो रही है, सी भी जा रही है और कुरान भी पढ़ रहा है, जूती भी मुकम्मल हो गई, सरकार भी शाम में दाखिल हुए। और जैसे सरकार शाम में दाखिल हुए तो छतें भर गईं, बगैर नकाब, औरतों को नकाब लगाने भूल गए। अली के बेटे की जियारत करने के लिए इतनी बेताब थी। जो बूढ़े थे वो लाठियों के टेक कर बाजार में आ गए, जो बच्चे थे वो घुटनों के बल चल के बाजार में इकट्ठे हो गए, जो बीमार थे वो वारसों के कांधे पर सवार होकर हसन मौला की जियारत करने के लिए आ गए। शोर पड़ा हुआ है। और वहां पर एक मौजूदा ऐसा हुआ है कि सरकार जैसे बाजार में सवारी दाखिल हुई तो वहां पर एक ऐसा बंदा बैठा था जो टांगों से माजूर था और दूसरा ऐसा बैठा था जो आंखों से माजूर था। सरकार ने, अब मसलिहत इमाम की, सरकार ने दोनों के दरमियान में आकर अपना आसा गिराया। अब वो जो टांगों से माजूर था वो हसरत से कहता है काश मेरी टांगें ठीक होती, मैं माजूर ना होता, मैं ये आसा उठाकर अपने सरकार को पेश करता। और अंधा कह रहा है काश मेरी आंखें होती, मैं ये उठाकर अपने सरकार को पेश करता। सरकार ने उस टांगों से माजूर था उसे हुक्म दिया उठ, मेरा आसा मुझे पकड़ा। उसने कहा सरकार मैं टांगों से माजूर हूं, मैं जो कह रहा हूँ उठ। थोड़ी देर थी तो उठकर आसा सरकार को पेश कर रहा था और सरकार ने मुस्कुराकर उसे कहा है तू हमारा हुबदार है, तो हमारा मवाली, तूने मुझे आसा भी दिया, तू ठीक भी हो गया, लेकिन तू कंजूस बड़ा है। उसने कहा सरकार मैंने अभी कौन सी कंजूसी की है? फरमाया ये आसा उसकी आंखों पे क्यों नहीं? यही सफारी मेरे मौला की सवारी, खरामा खरामा इसी रश में, इसी नारा विलायत के साथ चलती चलती बाजार से अबूर करके दरबार तक पहुंची। सरकार सवारी से उतरे, भरा हुआ था दरबार दुश्मनों के साथ, कितनी कुर्सियां लगी थी। यही दरबार था जो आप जाके देखते भी हैं, आप जब ज़ियारत पे जाते हैं शाम तो जो मस्जिद बनु उमैया है तो इसी में दरबार था। अभी भी इसकी कुछ और तब्दीली होगी, लेकिन उस वक्त और भी शाहानी तौर पर उनका निजाम बना हुआ था। उसने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जैसे अली का बेटा दरबार में दाखिल हो, कोई हसन के इस्तकबाल के लिए अपनी जगह से ना उठे, क्योंकि जब उठेगा नहीं तो माज़अल्लाह वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा, फिर कहाँ बैठेगा, क्या बात करेगा हमसे। लेकिन मुझे आज वाले हसन मौला की नालैन की कसम है, जैसे पहला कदम मेरे मौला ने दरबार शाम में रखा, वो जिसने रोका था ना कोई ना उठे, सबसे पहले वही उठा। वो उठा तो फिर सारा दरबार उठा। और यहाँ पर कहा जाता है कि सरकार वहां बैठे वहां बैठे मैं आज तक ये नहीं कह सका कि कहाँ बैठे, जो जगह मेरे मौला को पसंद आई सरकार वहीं पर तशरीफ फरमा हो गए। जैसे सरकार तशरीफ फरमा हुए तो दरबार में कानाफूसियां शुरू हो गई, एक दूसरे के कान में सुर 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 लोग करने लग गए। तो उनके लोगों ने यही कहा कि अपने बाप दादाओं की अमारतों के किस्से शुरू करो। चूंकि हसन का बाप माज़अल्लाह सारी जिंदगी उसने चटाई पर मुसल्ले पर गुजारी है, तो जब हम अपनी अमारतें शुरू करेंगे तो ये आगे हमारे साथ क्या बात करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब हसन मौला चुप करके बैठे हैं, भरे दरबार में उसका एक वजीर अपने दूसरे वजीर से कहता है मेरे बाप को जानता है? उसने कहा क्या है तेरे बाप को? उसने कहा मेरे बाप के इतने ऊंट थे, इतना सोना था, इतने हीरे थे, इतने जवाहरात थे, इतनी तिजारत थी, इतना सामान था, इतना माल था। वो चुप हुआ, दूसरा बोला, वो चुप हुआ, तीसरा बोला, वो चुप हुआ, 10वां बोला, वो चुप हुआ, 20वां बोला, वो चुप हुआ, 50वां बोला। 400 बंदे ने आपस में बातें की और अपने बाप दादाओं की इमारतें बताते 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 रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे। जब वो 400 बंदा चुप हुआ, हसन मौला ने उधर नहीं देखा जिधर ये सारे बोल रहे थे, उधर देखा जिधर इनका हाकिम बैठा था और हाकिम से कहते जरा बात सुन। अब ये हो ही नहीं सकता कि बुलाए हसन और वो आए, सर के बल ही आना है ना। हाथ बांधकर कहते हुक्म करें सरकार, मुझे क्यों बुलाया? क्या तारीख ने सीने पर ये कलम के साथ किस किरतास पे जुमला लिखा है। हसन फरमाते तेरे चमचू ने, करचू ने, वजीरों ने, मुशूरियों ने, सब हरामियों ने तेरे भरे दरबार में बैठकर अपने अपने बाप दादाओं के किस्से और कहानियां सुनाई अमारतों की। हसन फरमाते मैं तेरे भरे दरबार में अपनी माँ बतूल से लेकर अपनी माँ हव्वा तक हर माँ का किरदार तुम्हें बुलंद आवाज में बताता हूँ कि मेरी फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था। फरमाया तू अपनी माँ का किरदार मेरे काम में।
या अली वाह वाह माशाल्लाह। और वहीं पर ये सरकार ने जुमला कहा था कि या अहलियान शाम सुनो कि जब तुम्हारा हाकिम तुम्हें जमात करवाता है तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज में नहीं पढ़ता, और ना तुमने कभी पूछा है कि तू क्यों नहीं बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ता। आज मैं तुम्हें हसन बताता हूं कि ये क्यों ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, बाकी सारी सूरत ऊंची आवाज में पढ़ता है, बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज में क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि इससे पता है कि जो बे का नुक्ता है वो मेरा बाबा अली है, वाह वाह ये सिर्फ मेरे बाबे को छुपा रहा है। आहा तो यार खुदा का वास्ता है, जो आज भी नमाज में अली को छुपा रहा है वो किसकी सुन्नत अदा या अली करीब मैं आ गया हूँ। बड़े दरबार में बातें होती रही, बातें होती रही, बातें होती रही, बातें होती रही, होती रही, होती रही। मेरे सरकार हसन वालों ने फरमाया सुनो शाम वालों, मैं हसन हूँ, इब्ने अली हूँ, मैं खलीफतुल्लाह भी हूँ, मैं खलीफा रसूल भी हूँ, मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन भी हूँ, मैं अल्लाह का भी खलीफा हूँ, मैं मुस्तफ़ा का भी खलीफा हूँ, मैं अली का भी खलीफा हूँ, और नुमाइंदगी कर रहा हूँ बायक वक्त अल्लाह रसूल और अली तीनों की, और खुद भी हुज्जत हूँ। मैं चाहूँ तो जमीन को आसमान कर दूँ, मैं चाहूँ तो आसमान को जमीन कर दूँ, मैं चाहूँ तो मशरिक को मगरिब कर दूँ, मैं चाहूँ तो मगरिब को मशरिक कर दूँ, मैं चाहूँ तो यमन को शाम कर दूँ, मैं चाहूँ तो शाम को यमन कर दूँ, मैं चाहूँ तो मर्द को औरत कर दूँ, वाह 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 मैं चाहूँ तो औरत को मर्द कर दूँ। तो एक बंदा बाजा उस दरबार में उठा, हसन मौला को देखकर कहते ये तेरा बाप भी ऐसे माज़अल्लाह बातें करता था कि शाम को यमन कर दूं, यमन को शाम कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। कभी ऐसा भी होता है कि मर्द औरत हो जाए, औरत मर्द हो जाए, यमन शाम हो जाए, शाम यमन हो जाए। सरकारों से गौर से देखकर कहते हैं तुझे औरत होते हुए अब उसने जो अपने आप को गौर से यूं देखा तो हैयत ही बदल गई है, उसका वो मकाम ही बदल गया है, सारी जिनसी उसकी तब्दील हो गई है, बल्कि नौ तक तब्दील कर दी मेरे मौला। जिन्स और नौ की अलहदा बहस है मंतक में, सारी तब्दील हो गई। वो जो दुपट्टा और था सर पे पगड़ी, वो दुपट्टा बन गया, मेका ससुराल हो गया, ससुराल मेका हो गया। और यहाँ पर भी किबला मेरे सामने तो शरीफ फरमाया सैयद तहजीब रज़ा नकवी साहब, मालिक इनका साया कायम रखे ये, और मालिक इनको हर जगह पर इसी तरह मकाम और बुलंद रखे। आज इत्तेफाक था कि वो तो शरीफ फरमा थे, और आप मोमिनीन भी मेरे सामने तशरीफ फरमाए। ये तो किताबें भरी पड़ी है ना कि वो जो मर्द था वो शामी था, वो जो औरत थी वो यमन की थी। सरकार के एक ही लफ्ज में दो दावे पूरे हो गए, मर्द औरत हो गया, औरत मर्द हो गया, शाम यमन हो गया, यमन शाम हो गया। बस जब वो शर्मा के, अब तो यही कहा जाएगा ना कि शर्मा कर वो जब दरबार से निकलने लगी, पीछे से अली के लाल ने आवाज दी, खुशखबरी सुनता जा, तुझे औरत बना दिया, घर बैठे तेरी बीवी को मर्द बना मर्द हो गई, मर्द औरत हो गया, यमन शाम हो गया, शाम यमन हो गया। बस खत्म होगी, मैं दुआ के करीब आ गया हूँ। फिर इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो मौला चाहेगा तो फिर आपसे मुलाकातें इंशाल्लाह जिंदगी में होती रहेंगी। 3 दिन के बाद सारा शाम वाले गलों में कपड़े डालकर हाथ बांधकर, वो जिसे औरत बनाया था उसे लेकर सरकार हसन मौला की बारगाह में हाजिर हुए और हाथ बांधकर कहते हैं सरकार आप करीम है, आपका बाबा करीम है, आपका नाना करीम है, आपका दादा करीम है, आपकी नानी करीम है, आपकी अम्मा करीमा है, मौला इसे माफ कर दें, सरकार इसे माफ कर दें, सरकार इसे माफ कर दें। मुस्कुरा कर मेरे मुज्तबा मौला फरमाते हैं इसे माफी मिलेगी, लेकिन चंद अरसे के, थोड़े अरसे के बाद। मौला अरसा कैसा? फरमाया अभी इसने एक बच्चे को जन्म देना है, तो ना लड़का होगा ना लड़की होगा, जो शाम की गलियों में नाच नाच के पूरी दुनिया को बताएगा खबरदार आले मोहम्मद के साथ कभी मजाक न सरकार मुज्तबा के सदका में मेरा मालिक हय्यल अज़ा वालों की तमाम तौफीकात में इजाफा फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी हमें आज़ादार मोमिनीन सुन रहे हैं मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। सरकार हसन मुज्तबा के सदका में मेरा मालिक इस कोरोना वायरस और वबाई अमराज से मेरे वतन को और तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमाए, और बिलखसूस मेरे वतन अजीज पाकिस्तान की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। हमारे पाकिस्तान के जितने आर्मी वाले हैं, डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मां आज़ादारों की हर दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाए।
हमारे सैयद अबू साले रिजवी साहब मालिक उनकी जिंदगी दराज फरमाए, मोमिनीन की वो खिदमत कर रहे हैं मालिक उनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। रावलपिंडी में हमारे भाई हैं सैयद अली अब्बास काज़मी साहब हसन मौला के सदका में मालिक उनको शिफाए आजल कामला वाजिला अता फरमाए। कराची से हमारे बड़े भाई हैं सैयद सलमान मुज्तबा तदबीर मुज्तबा मालिक उनको शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए। जहाँ जहाँ पर अज़ादार मरीज हैं मेरी मखदूमा हसन मौला के नालैन के सदका में उनको शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए। जो हाजतें हैं, जो मन्नतें हैं, जो मुरादें हैं, ये सामने हैं, जो सामने नहीं हैं, जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, मालिक तमाम की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। लाखों की एक दुआ है हमारे वारिस ज़माना के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन।